Hello, Joel. Joel, do you hear me? Joel, do you hear me? Are you listening to me, Joel? Salah Afzal? Okay, good. So at last you have joined the class. Good. So please be attentive toward your screen. And today we are going to learn the basic forces of nature. The basic forces of nature. So what is meant by this? Actually, in our usual life, we are dealing with different types of forces. For example, the mechanical types of forces which we are having in daily use, and gravitational force, then electric force, and so on. There are many different types of forces. But according to scientists, in the previous century, there were the old scientists or the classical scientists. The classical scientists means Newton, and after that Galileo time and so on. The classical scientists thought that there are only five types of forces in the universe. Sorry, not 5 types of forces, but 4 types of forces, 4 different types of forces, 4 different types of forces in the universe. For example, they were considering gravity to be a unique force, and then they thought the electric force to be a unique force, and there were many other forces which were thought to be different from each other. मीन्स बात ये हुई कि जो मुख्तलिफ जो फोर्सेस थी, फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स, these were uniquely different from each other. For example, gravitational force is only attractive, but the electrostatic force, means Coulomb's force, is attractive as well as repulsive. Okay. For example, we may say that the gravitational force is only attractive force, while the electrostatic force we also call it as the Coulomb's force. Is attractive as well as repulsive.
because you know that in the Coulomb's force or electrostatic force, the like charges are repelling each other while the unlike charges are attracting each other. So the Coulomb's force or electrostatic force is repulsive as well as attractive, while the gravitational force is the only attractive force. It has no repulsion. Okay, gravitational force has no repulsion. So gravitational force has no repulsion. Then they thought another force in the nature, and that is the magnetic force. The classical scientists thought another force, that is magnetic force, to be uniquely different from all other types of forces. मीन्स कि क्या हुआ कि एक मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, ये बिल्कुल ही एक और यूनिक किस्म की फोर्स कंसीडर की गई जो कि बाकी तमाम फोर्सेस से बड़ी ही यूनिकली डिफरेंट थी। किस लिहाज से डिफरेंट थी कि इसके अपने जो है ना वो तरीका था। मीन्स के ये ना तो इलेक्ट्रिक फोर्स से रिजेंबल करती थी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स मीन्स बिजली की जो फोर्स थी, जबकि मैग्नेटिक जो है उसमें मैग्नेटिज्म थी। ठीक है, इस तरह से ये मुख्तलिफ फोर्सेस थी। फिर एक और फोर्स थी, एक और फोर्स जो क्लासिकल फिजिसिस्ट ने जो थिंकिंग जो की वो थी, जो प्रपोज थी, वो क्या थी? द क्लासिकल फिजिसिस्ट were convinced about another force, that is the nuclear force, which binds nucleons. Nucleons means protons and neutrons inside the nucleus. ये एक और फोर्स थी जो कि न्यूक्लियंस को, मीन्स के प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर बाइंड करके रखती है। तो इसको जनाब जी न्यूक्लियर फोर्स का नाम दिया, या फिर इसको स्ट्रांग फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा इसका नाम दिया, दैट इज द स्ट्रांग फोर्स। सो दिस न्यूक्लियर फोर्स इज आल्सो कॉल्ड एज द स्ट्रांग फोर्स। इसको स्ट्रांग फोर्स हमने क्यों नाम दिया? बिकॉज इट इज द स्ट्रांगेस्ट फोर्स इन दिस नेचर, इन दिस होल वर्ल्ड, होल यूनिवर्स। ठीक है, दैट्स व्हाई इसको हमने स्ट्रांग फोर्स का नाम दिया। ठीक है, तो ये भी क्लासिकल फिजिसिस्ट मींस दीज आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस व्हिच वर कंसीडर्ड बाय द क्लासिकल फिजिसिस्ट। सो इसमें कौन कौन सी हो गई जी? एक आपके पास फर्स्ट जो फोर्स है वो कौन सी है? वो आपके पास आ गई। ये जो फोर्स थी ग्रेविटेशनल फोर्स, जबकि दूसरी आ गई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तीसरी जो है थर्ड इज मैग्नेटिक फोर्स। Fourth is, which is that the classical physicists were considers another force, which is called the force in the classical physics. So we have, along with time,
but along क्या हुआ, एक और चीज आई और तो जब हम ये बात कर रहे थे कि बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर में हमारे पास ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस आ गए, तो क्या हुआ, मैक्सवेल ने क्या काम किया कि जी मैक्सवेल ने कंबाइंड टू फोर्सेस, दैट इज कौन सी फोर्सेस, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स एंड द मैग्नेटिक फोर्स. He proved that both of the electric as well as magnetic force are same thing. Both have same nature. Both have same nature. तो इन दोनों की नेचर सेम है, एग्जैक्टली सेम टू ईच अदर. ये एक्चुअली ये सिंपली क्या है कि ये एक दूसरे को हम मुख्तलिफ शक्ल में हम देख रहे हैं, इन डिफरेंट जो है ना शेप में हम देख रहे हैं, कि हमें बज़ाहिर जो है हमें ऐसे लगता है कि ये दोनों फोर्सेस डिफरेंट हैं, बट एक्चुअली बोथ फोर्सेस आर द सेम थिंग. तो एक तो ये चीज. सेकंड थिंग इज, एक और भी काम हुआ. फोर फोर्सेस थी. सो नंबर ऑफ फोर्सेस reduced from 4 forces to 3 forces. 4 forces से 3 forces पर जा. ये एक चीज होगी. तो 4 फोर्सेस थी पहले हमने जैसे कहा, अब ये 3 फोर्सेस हो गई. कौन कौन सी, दैट इज, एक तो हो गई थी आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस इज फर्स्ट. देन सेकंड इज स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स या फिर सिंपली स्ट्रांग फोर्स. एंड थर्ड इज, थर्ड कौन सी है जी, इलेक्ट्रो, यानी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म हैव बीन कंबाइंड विद ईच अदर. सो दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. सो दीज 3 फोर्सेस वर कंसिडर्ड टू बी द बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर. हर तरह के जो फोर्स है, जैसे कि केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो एक एटम की कंपोजिशन है उसमें जो प्रोटॉन्स आपस में और न्यूट्रॉन्स कंबाइंड है, वो इस फोर्स की वजह से. जो बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व कर रहे हैं वो इस फोर्स की वजह से, ड्यू टू दिस फोर्स मींस के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. जो अंदर है वो फोर्स कौन सी है, न्यूक्लियर फोर्स, वो भी इसी में से, इन 3 टाइप्स में से आ गई. ठीक है. जबकि किसी चीज का अगर वेट है, वेट इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स. ओनली 3 फोर्सेस एग्जिस्टेड. बट अब एक और प्रॉब्लम आ गई. व्हाट इज दैट प्रॉब्लम, कि एक और डिफरेंट टाइप की फोर्स को डिस्कवर कर लिया गया. एंड अदर डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स वाज डिस्कवर. और वो कौन सी थी, आफ्टर केयरफुल रिसर्चेस, जब रिसर्चेस की गई बहुत ज्यादा, एन अदर फोर्स वाज डिस्कवर्ड. दिस फोर्स exists
between the quarks and other basic particles of nature. This force is termed as weak force. इसको नाम दिया weak force का because it is the weakest force in nature. यूनिवर्स में ये सबसे वीक फोर्स, इससे वीक कोई फोर्स नहीं है, ठीक है ना। ये जनाब हमने एक चीज डिस्कवरी, ठीक है। तो वी हैव अगेन एक और, क्योंकि फोर्स पीछे एक फोर्स कंबाइन हुई, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, टू फोर्सेस वर कंबाइंड टू ईच अदर, और यहां पे आके क्या हो गया, फिर से एक नई फोर्स डिस्कवर हो गई। यानी पहले तो टू फोर्सेस कंबाइन हुई और क्या हुआ, उसके रिजल्ट में टू फोर्सेस के कंबाइन होने की वजह से क्या हो गया, नंबर ऑफ फोर्सेस जो है वो 4 से 3 हो गए। बट अगेन क्या हुआ कि फोर्सेस जो है वो फिर से बढ़ गई, क्योंकि एक नई फोर्स डिस्कवर हुई जो कि वीक इंटरेक्टिंग फोर्स थी, जो कि न्यूक्लियॉन्स के अंदर हो। यानी कि जैसे प्रोटॉन है, प्रोटॉन का भी एक स्ट्रक्चर है। प्रोटॉन एक्चुअली बेसिकली वो एक अकेली चीज नहीं है। प्रोटॉन इज नॉट अ सिंगल एंटिटी, बट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी एंटिटीज व्हिच आर कॉल्ड एज द क्वार्क्स। सो अब हमारे पास फिर से क्या हुआ कि इन 1970s हमारे पास जो था, जो प्रीवियस सेंचुरी थी, सो इन द प्रीवियस सेंचुरी वी हैड 4 फोर्सेस। अब ये हमारे पास फिर से 4 हो गई। कौन कौन सी? दैट इज कौन सी है जी? फर्स्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड इज व्हाट इज दैट, द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग फोर्स, थर्ड इज electricity and magnetism are combined to each other, so this is electromagnetic force. Fourth is, that is the weak force. So these were the 4 forces which were considered to be the basic forces of nature in the previous century. बट अब यहां पर क्या हुआ कि हमारे जो पाकिस्तानी जो साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर अब्दुल सलाम, ही वर्कड ऑन इट, और उन्होंने जब वर्किंग की, ही वाज द ग्रेट मैथमेटिशियन, और मैथमेटिक्स में वो रिसर्च कर रहे थे अपनी पीएचडी की। तो उसमें उन्होंने, ये उनका यही फोर्सेस से रेलेवेंट टॉपिक था, उसी में ही उन्होंने क्या किया कि 2 फोर्सेस, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड वीक फोर्स, इन दोनों के बारे में जब स्टडी किया तो पता ये चला कि ये तो सेम चीज, दे हैव द सेम नेचर, they have the same nature. It means that basically they are same thing.
दे आर सेम। सो अब इस फोर्स को अब कंबाइन कर दिया गया। समटाइम्स वी टेक इट एट डिफरेंट forces while doing the calculations of the nuclear inside the nuclear physics, and sometimes we take them as different forces, but basically they have been proved to be the same forces because they are involving the interaction of the photons. The photons are moving in between them, the different particles. That's why they have the same nature. They are similar to each other. अब इनको भी कंबाइन कर दिया गया एंड अगेन अब आपको पता है ये फोर्स वन हो गई, ग्रेविटेशनल फोर्स इज वन फोर्स, द स्ट्रांग फोर्स इज द सेकंड फोर्स, टू फोर्सेस, एंड थर्ड फोर्स इज this is called as the electromagnetic weak force. What is this called? This is the new name for this force, the electromagnetic weak force. So we have three forces. This is the third force now. Magnetic weak force is the third force. But three forces: the gravitational force or the gravity, then is strong force or strong nuclear force, and third is electromagnetic weak force. These are three types of, basically these are three forces. So these are running the whole universe, are running कुछ भी काम होता है वो इनमें से ही किसी एक या दो या तीनों फोर्सेस की वजह से होता है. देयर इज नो अदर फोर्थ फोर्स नहीं है इस पूरी यूनिवर्स. So we were basically interested to have the studies of the basic or elementary particles, and for getting the knowledge of that we use different types of forces. अब इनका let's do. So we have to make the comparison. Comparison means which force is the strongest force, which is the weakest force, which force is weaker than some other force but stronger than the other force. ये क्या क्या है इनके दरमियान comparison. We have to do the comparisons. तो सबसे पहले basically जो gravitational force जो है, this is the weakest force of this universe usually. But अब दूसरा भी मसला है इसका. वीकेस्ट तो है, यानी कि इट इज वेरी 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 वीक फोर्स, बट इट हैज वेरी लॉन्ग रेंज. अब ये हम देखते हैं कि जी कितने वीक है.
It is 10 power minus 38. 10 power minus 38 times compared to 38 times जो है ना, ये क्या है, माइनस 38 मीन्स माइनस मीन्स वीक, वेरी वीक. यानी कि ये क्या होगा, 0.00038 जीरोस आपने लगा. ठीक है, तो ये क्या है, स्ट्रांग फोर्स की निस्बत. स्ट्रांग फोर्स मीन्स न्यूक्लियर फोर्स, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैव बीन बाइंडेड विद ईच अदर. ठीक है, तो ये हो गया जी, इतनी ज्यादा ये कमजोर फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स के मुकाबले. और ये भी आप कह सकते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स इज वेरी वेरी स्ट्रांग एज कंपेयर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स. तो इस तरह तो हम ये क्या कह सकते हैं, अगर हम कंपैरिजन करें तो अकॉर्डिंग टू दिस कंपैरिजन is negligible. Strong force. ये negligible है. Are going to be discussed now. इसमें हमारे पास आ गया बच्चों, एक तो आ गया ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स जो जिसको हमने कहा कि दिस इज द वीकेस्ट फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स Fg कह ले. Fg फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स इज लेस देन एनी अदर फोर्स. ये वीक है एज कंपेयर टू द वीक फोर्स, और F वीक यू में राइट इट एज. F weak means weak force. It is weak force means it is more force as an ठीक है ना. वीक फोर्स यहाँ पर देखते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स इज लेस देन वीक फोर्स. तो वीक फोर्स उसका नाम रखा है क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर है और वहां पर पहले स्ट्रांग फोर्स एक मौजूद, लेस स्ट्रांग. So gravitational force is weaker than weak force, which is weaker than electrostatic force. Yeah, electromagnetic, you may say electromagnetic. Sorry, the connection has been lost with the laptop. Let me connect it again. Okay, it's working. So electromagnetic force
which is weaker than the strong nuclear force. F strong means strong nuclear force. So this is the comparison of all of these forces, all of these four forces. So you may see here that Fg, G for gravitational. So gravitational force is weaker than the weak force, which is weaker than the electromagnetic force, and which is weaker than the strong force. So you may see at here that the gravitational force is the weakest force, while the strong force is the strongest force in this comparison. Okay, now we have a problem. अब प्रॉब्लम क्या है कि ये फोर्सेस का तो हमने कंपैरिजन तो कर लिया. We have made the comparison that which is strong and which is weak, but there is a problem. और वो हमारे माइंड में एक चीज चल रही है, वो ये है कि ये फोर्सेस बेसिकली हैं क्या चीज, ये कैसे चल रही हैं, how these forces are working. The main problem is this: we are trying to understand that all these forces are working. All these forces are working means how the different particles interact with each other by using these forces. मीन्स प्रॉब्लम ये आ रही है कि अब हम ये भी सोच रहे हैं साथ कि ये कैसे ये फोर्सेस काम कर रही हैं. ये तो हमें पता चल गया इनका कंपैरिजन कि कौन सी स्ट्रांग है कौन सी वीक फोर्स है, बट हम एक और हमारे माइंड में एक चीज चलती है कि भाई ये कैसे ये फोर्सेस काम कर रही हैं, इनके दरमियान हो क्या रहा है. जैसे कि हम ये कहते हैं कि दो चीजें हैं, वो ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं. तो क्यों कर रही हैं, हालांकि उनके दरमियान स्पेस में तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि ना कोई रस्सी लगी हुई है, ना कोई ऐसी चीज जो उनको खींच रही हो आपस में. ठीक है. फिर इसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. तो वो कैसे कनेक्टेड है, किस तरह से हो रहा है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो कैसे वर्किंग कर रही है, हाउ इट इज वर्किंग, कि उनको एक दूसरे से जो है ना वो दूर से वो एक दूसरे के पास लाने की कोशिश कर रही है. हालांकि बीच में तो कोई चीज ऐसी है ही नहीं है स्पेस में जो उनको पकड़ के जो है ना जबरदस्ती लाती है, कोई मटेरियल तो है नहीं है. या अगर उनके दरमियान रिपल्शन है, इफ दे हैव रिपल्शन देन हाउ दे आर बीइंग रिपल्स्ड फ्रॉम ईच अदर, वो कैसे हो रहा है. तो उसके लिए थ्योरी जो बनाई गई है उसमें कुछ चीजें अंडरस्टैंड करने की कोशिश की. तो सबसे पहले हम ग्रेविटी की बात करते हैं. तो ग्रेविटेशनल फोर्स, how the gravitational force is working, that it is working through the transfer of a non-massive particle called, what is that particle? Graviton. ये पार्टिकल है जी ग्रेविटॉन, जो कि यूनिवर्स में हर दो चीजों के दरमियान एवरी टाइम ट्रांसफर हो रहा है, which is being transferred between every two particles of the universe without lapse of time. यानी टाइम तो लगता ही नहीं है.
यूनिवर्स के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ग्रेविटॉन को जाने के लिए टाइम लगता ही नहीं है, जीरो टाइम, एग्जैक्टली जीरो टाइम। ये भी नहीं है कि 0 पॉइंट समथिंग वो टाइम लग रहा हो, बल्कि एग्जैक्टली जीरो टाइम है। तो इसकी स्पीड फिर क्या है? इन्फिनिट स्पीड है। इट इज स्टिल अंडर कंसिडरेशन कि ये कैसे हो सकता है कि जी एक चीज जीरो टाइम में पहुंचे एक जगह से दूसरी जगह, और दूसरा ये है कि इन्फिनिट स्पीड कैसे किसी चीज की पॉसिबल है कि इन्फिनिट स्पीड हो, कुछ ना कुछ तो होगी, एक खास वैल्यू होगी। बट अभी तक जो हमारे पास जो लेटेस्ट जो नॉलेज है उसके मुताबिक यही डाटा है हमारे पास कि ये इसकी इन्फिनिट स्पीड, और ये क्या है कि जीरो टाइम में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। तो ये तो जनाब आ गया ग्रेविटॉन के बारे में। तो ग्रेविटॉन क्या है? ग्रेविटी की वजह से ग्रेविटॉन की इंटरेक्शन हो रही है। अब सेकंड थिंग इज कि जी हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक फोर्स इज वर्किंग। सो फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक, इट इज कंसिडर्ड, कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं और कुछ मैथमेटिकल ट्रीटमेंट्स हुई हैं जिसकी बेस पर हमने ये प्रिडिक्ट किया कि दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इसको हम बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहेंगे, न्यू नेम तो हमारा ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स is due to transfer of photons between any two charged particles. So any two charged particles are basically having the transfer of photons between them. You know what are the photons? Photons are actually the electromagnetic radiations. ये जो हमारी जो लाइट है, विजिबल लाइट और एक्स रेज, gamma rays, radio waves, ultraviolet rays, infrared rays, defense rays, these all are actually comprising of the photons with different frequencies or different wavelengths. तो ये actually जो पार्टिकल्स के दरमियान भी जो इंटरेक्शन है, that interaction is due to the transfer of photons between them. This transfer of photons is continued every time. That's why they are having either attraction or repulsion with each other. So now we have to see the weak force. Is due to transfer of bosons, that is W bosons and Z bosons between particles. तो ये क्या हो रहा है जी? W boson and Z being transferred between different particles, and so we are getting the interaction. That interaction is while the fourth force, that is the strong force, is mediated by gluons.
So this is the strong force which is being mediated by the gluon. So we have one force, graviton, a particle graviton, which is running the gravitational force, while the other particle is photon, which is working on the electromagnetic force. Next is weak force, is actually the mediator of the weak force, while the gluon is the mediator for the strong force. All of these 4 different types of particles means, what is that? The graviton, and then next is the boson, and the last is gluon. These 4 different types of particles which are running the different types of forces, these different particles are mediated particles, are called as the field particles. These are called as their common name is field particles. So field particles these are. Dear students, the topic of the basic forces of nature is very lengthy and it has an extreme level of the details. इनकी explanations बहुत ज़्यादा हैं, तो आप इन पर पूरी बुक्स लिख सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो सेकंड ईयर के लिए जो सिलेबस है उसके मुताबिक ये सब कुछ ही है. अगर हमें मौका मिलेगा तो हम बाद में मजीद डिटेल्स को भी हम डिस्कस करेंगे अदर देन द सिलेबस. बहरहाल ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन थी फील्ड पार्टिकल्स एंड बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर के बारे में. अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो, यू कैन डिस्कस विद मी. ठीक है, आप अपने राय का इजहार जरूर करें. थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज.